EV sector and in coming area. What do you think about it? Can you please explain? If you are asking about the challenges, I would say that three, four of them I can identify. One is charging infrastructure, yes, that we are addressing gradually. That is one. Increasing awareness is another thing. Seminars of this type, that is what performs that role. I also mentioned about the innovations and the technological breakthroughs that have to be taken place so that we always be ahead of globally we are the best. That is again one of the key areas. So these are precisely, as I can recollect, these three or four of areas I would say that this thing should be the principal focus for taking electric mobility forward. The government are giving the you can say some subsidy and all that. Is it sufficient, or they are moving ahead in the next step to cover it large scale on this thing? So if I tell you that there are some 14 kind of incentives that are given, Okay. out of which 6 are fiscal incentives, financial incentives, and there are 8 which are non-financial incentives. Yeah. So of course, some state would, instead of these 14, some state would give 13, some will give 12, some will add on to it. That is there. So whether an incentive is adequate or not, the purpose of an incentive is to bring that mobility on a point of inflection. After that, it should move on its own. That is what the purpose is. It's like I always say, it is like a scholarship. Scholarship is the purpose for making you, getting a job, getting you learning and all this. So my sense is that the incentives which have been given, that is fairly adequate, and that is validated by the fast movement that is taking place in two-wheelers, in three-wheelers, in buses, and all those areas. So that is there. Of course, we always keep on revisiting that if there is need, there is requirement, we can always add on to it. Similarly, the PLI schemes also, incentives have been embedded into it, but there is a time period within which, up to which the incentives can flow forward. Our sense is that by that time, our country should be completely self-sufficient. We should be able to create the world-class product. That is what the sense is. GST slabs like 12 to 5% in this sense. So it is been allowed from April onwards, or it is going implemented? No, GST that is there. Yeah. In fact, this is not the only once. This is not the first time it has been done. If you see the entire electric mobility, there are a good number of times when GST slabs have been rationalized. Yes. What is the idea? When you ask for rationalization of GST, reducing GST, then it hits the government treasury. It reduces the government's earning. How can you convince them? If you tell them that this particular intervention is going to have a lot of multiplier effect, इससे कई तरह के फायदे और भी होंगे लोगों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा बढ़ेगा, चीज लोकलाइजेशन हमारा बढ़ेगा। यदि आप ये चीज़ें सरकार के सामने कागज़ पर और बढ़िया स्टैटिस्टिक्स के साथ, डेटा के साथ इसको यदि आप सिद्ध कर पाते हैं, तो हमेशा जो है उसमें हमारे तरफ से चेंज होता है। इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा चेंज किया गया है, और हर बार चेंज के पीछे यही मंशा रही है कि ये जो है एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरे इकॉनमी में लेकर के आए। और ये देख रहे हैं कि जब जब हम इसमें रिडक्शन किए हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर पड़ा है। सर इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बन रहे हैं, द मेजर पार्ट इज lithium ion batteries, which cost is almost I think 60% of the vehicle cost. अभी जम्मू में we recently got some lithium. So can you please tell me about this? कब तक इंडिया में प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं लिथियम आयन बैटरीज की? इट्स सब क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जो है और उसकी कॉस्ट डेफिनेटली कस्टम ड्यूटीज वेव ऑफ हो जाएंगे उस केस में।
जीएसटी तो होगा ही लोकल इम्पैक्ट, बट कब तक विल एक्सपेक्ट कि हम 2-3 सालों में या कब तक इसका प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव? एक चीज तो ये है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल, इसका मतलब उसमें लिथियम है। यस एडवांस केमिस्ट्री सेल का मतलब हो गया कि लिथियम है। यस आपने ठीक बताया कि लगभग एक व्हीकल में 35 से 40% के बीच में वो उसकी बैटरी का दाम होता है। और उसमें भी यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 7% के आसपास, आप मोटा मोटी व्हीकल के दाम में समझिए, वो लिथियम का दाम होता है। एडवांस केमिस्ट्री सेल अभी अपने देश में नहीं बनता, बैटरी बनता है। सेल और बैटरी में फर्क ये हुआ, सेल जो है वो इंडिविजुअल है, एक इकाई है, और बैटरी जो है उसका समूहवाचक संज्ञा हुआ, मिला करके उसको कर दिया तो वो कलेक्टिव हो गया। तो बैटरी, अभी तक बैटरी हम बनाते हैं लेकिन सेल बाहर से लाना पड़ता है। ये सेल हम अपने यहाँ कब बना सकेंगे, इसके लिए PLI स्कीम चला हुआ है जिसमें 20 गीगावाट का प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी 18,100 करोड़ रुपये 50 गीगावाट के लिए हम लोगों ने ईयर मार्क कर रखा है, जो MHI जो है इसको ड्राइव कर रहा है। तो उम्मीद किया जाता है कि अब उसमें कौन लोग बनाने वाले होंगे, बिड का प्रोसेस, सारा चीज़ आइडेंटिफाई हो चुका है। हम उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं कि कैसा उनका काम चल रहा है। ये बहुत क्रांतिकारी ये स्टेप है सेल बनाना, ये साधारण चीज़ नहीं है। इस वक्त दुनिया में देखें तो केवल 8 से 9 देशों में ही सेल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का फैसिलिटीज डेवलप किया जा रहा है। फैसिलिटी को डेवलप करने में ही 2 वर्ष लगते हैं। तो 2 वर्ष में फैसिलिटी डेवलप होता है, ऑलरेडी वो समय शुरू हो चुका है, और 2 वर्ष के बाद जो है आपका प्रोडक्शन शुरू होता है। ये तो कहानी हुई एडवांस केमिस्ट्री सेल की। दूसरी बात आपने पूछा लिथियम, लिथियम कब अपने यहाँ निकलेगा। आपने ठीक बताया, जो लिथियम का रिजर्व अभी आइडेंटिफाई हुआ है वो करीब 5.9 के आसपास मिलियन टन का है, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन वह अभी कई स्टेजेस में होगा। हाँ, जब आप जिसको G3 बोलते हैं और G2 बोलते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप एग्जैक्ट फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसका आकलन लगा सकते हैं कि कितना लिथियम है, किस क्वालिटी का लिथियम है, कितनी कॉस्टिंग होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सारा डिटेल तब जाना जा सकता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति का एक वरदान है भारत के लिए कि लिथियम जो अभी तक नहीं था इंडिया में, वो जम्मू में मिला है। वरदान ही है, और साथ साथ अपने देश ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इतना जोर लगा दिया है, प्रकृति भी आपको मदद करने के लिए तैयार होगी। बिल्कुल। Sir, 7% तो how much budget is allocated by the नीति आयोग for EV driving mission? नहीं, इस तरह से पूरा तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कई चीज़ें हैं। जैसे सबसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है फेम है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया है। दूसरा प्रोग्राम PLI स्कीम है, उसके लिए 18,100 करोड़ रुपया है। उसी में एक निश केमिस्ट्री का भी प्रोग्राम है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए अलग से प्रोग्राम है। कुल मिलाकर के आप समझ लें इसको, करीब हम समझें कि अप्रोक्सीमेट 55-60 हज़ार करोड़ रुपया के आसपास का एलोकेशन इस पर रखा गया है। ये तो केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा जो हमने बताया आपको, राज्य सरकार जो हैं वो अपने तरफ से वो भी उस पर काम कर रही है। हर प्रकार से हर दिशा में इसमें काम किया जा रहा है। सर, लिथियम के बाद यदि लिथियम का प्रोसेस पूरा हो जाएगा बैटरी, तब कितने % हम लोग समझ सकते हैं कि EV का कॉस्ट डाउन होगा? इसको तो अभी बता पाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप मोटा मोटी इस तरह समझें, यदि हम खुद ही एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने लगेंगे, और एडवांस केमिस्ट्री सेल करीब 40% जो है वो 35 से 40% है, और अभी हमको वो विदेश से मंगाना पड़ता है, अभी हम उसको बनाते हैं। यदि उसको हम खुद बनाना शुरू करते हैं और अपने देश में नेचुरली वो लोकलाइज होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, तो हमारा सेंस है कि कम से कम 10%, 10 से 15% का इस पर असर होना चाहिए। 12% लेकिन पूरा इसको जो है एक कॉन्क्रीट नंबर देना कठिन होगा, टाइम लगेगा। अच्छा, may I request director sir to also add some points? सर, एक क्वेश्चन है मेरा। क्या सरकार को इसमें से कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर देना चाहिए
ऐसा हमें लगता है कि वेव ऑफ करनी चाहिए, सो दैट ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो ईवी बैटरीज है, सेल्स की, लिथियम आयन सेल की कॉस्ट कुछ कम हो सके। कुछ बारे में कुछ सरकार कुछ कर रही है उसके बारे में? हाँ, कस्टम ड्यूटी सेल पे ऑलरेडी 5% है, और जो इस साल ख़त्म हो रहा था तो मिनिस्ट्री ने अपना प्रपोजल ले गई और उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड करवा दिया है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी सेल पे कस्टम ड्यूटी 5% ही है। मशीनों पर जो और इसके अलावा जो एडवांस केमिस्ट्री सेल की मशीनें आती हैं जो बनाने के लिए, जो PLI स्कीम के तहत और उसके अलावा भी लोग बना रहे हैं, उसमें भी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है इसी साल। जो एंड यूजर, जो यूजर है, जो साइकिल और कार यूज करेगा, उसके लिए किस तरह का सरकार की सब्सिडीज अवेलेबल है? जैसे सर ने बताया बहुत सारी हैं, 14 हैं, कुछ फिजिकल हैं, कुछ नॉन फिजिकल हैं, ठीक है। GST भी कम कर दिया, 5% चल रहा है, फेम स्कीम चल रही है, PLI स्कीम चल रही है। अब देखिए इस गवर्नमेंट का क्या अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है, पहले तो भारत में बने, आत्मनिर्भर भारत अभियान। दूसरा, जब ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल जनरेट हो जाती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, तो कम से कम या रीजनेबल रेट पे इंडिया में प्रोडक्शन हो, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। अब तीसरा, जब हम कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे ग्लोबली तो हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारा टारगेट क्या है, अपने यहाँ भी बेचें और बाहर भी एक्सपोर्ट भी करें ताकि वर्ल्ड लीडर बन सकें, ये है गवर्नमेंट। तो क्या लगता है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट और कम होंगे? कुछ ऐसा डिमांड नहीं शुरू रहेगी। कर सकते हैं? ये तो थोड़ा सा दूसरे तरह का प्रश्न हो गया कि इतना जैसा बताया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात बताया कि हम केवल ईवी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना चाहते, हम अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, एडवांस केमिस्ट्री सेल के, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, कि दुनिया में बेस्ट जगहों पर हमारी गाड़ियाँ जा सकें। ये हमारा पूरा का पूरा, जिसको ग्रैंड एम कहिए, सबसे बड़ा जो हमारा ये एम्बिशन है। सर ईवी की बात चल रही है, तो इससे छोटे शहरों में रोजगार कैसे पैदा होंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। मैं इसको एक एग्जांपल के तहत समझाऊं। जी सर। देखिए, एक प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट के चारों तरफ एक इकोसिस्टम होता है। जैसे ATM आया था तो लोगों ने क्या बोला था, रोजगार चले जाएंगे। ATM आया था, अब ATM भी लगते हैं, जो पैसा देने वाले बाबू की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, गार्ड भी चाहिए, मशीन बनाने वाला भी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसे डालने की मशीन भी चाहिए। तो जब एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, उसके तहत रोजगार क्रिएट होगा। क्योंकि सेक्टर अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फ्यूचर में जब बड़ा शेप लेगा तो इसमें IT के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप्स को भी रोजगार मिलेगा और इनोवेशन होंगे। और जब हम कह रहे हैं ना कि हमारा बड़ा टारगेट क्या है, इंडिया में ही बेचना है, एक्सपोर्ट करना है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, सबसे ज़्यादा रोजगार तब बनेगा। चार्जिंग स्टेशन क्या बड़े शहरों में बनाए जाएंगे इसको लेकर? अभी कल ही परसों सोमवार को ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने 7,246 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शन किए हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पेट्रोल पंप पे लगेगा। 3 कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 3 में लगेगा। इसके अलावा OMC अपनी तरफ से भी लगाएंगी। प्लस जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, ईवी की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, तो अपने आप ये कि बिजनेस केस बनेगा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंकरेज होकर इसमें अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। तो सरकार ने आम कोई इस पे आदमी टैरिफ, कैसे इससे जुड़ेगा सर? कोई आम आदमी ईवी से कैसे जुड़ेगा? ये व्हीकल की बात चल रही है, आम आदमी को जब जोड़ेंगे तब जाकर लगता है सफल होता है। आम आदमी इसलिए जुड़ेगा, जैसे फेम स्कीम में हम सब्सिडी दे रहे हैं तो अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई। दूसरा, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, 1 रुपये पर किलोमीटर। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको, आम आदमी को। बस चलेगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, आम आदमी को फायदा है। एयर कंडीशन भी होती है और फ्रेट भी कम हो गया है, तो फायदा किसको, आम आदमी को फायदा है। सर चार्जिंग टैरिफ कुछ डिसाइड किया सरकार ने, कितने रुपए यूनिट चार्ज होगा ऐसा? नहीं, वो फिक्स किया हुआ है कितना आप चार्ज ले सकते हैं। तो जितने पर आप पावर को खरीद रहे हैं उससे संभवतः 10% या 15% ज़्यादा ही आप चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, वो फिक्स किया हुआ है। जैसे हमारे घरों में बिजली का यूनिट आता है 6 रुपए पर यूनिट या 9 सौरभ रुपए सर से एक और चार्जिंग का कोई यूनिट होगा? नहीं, घर का नहीं बता रहे हैं। नहीं, घर पे तो आप जो जिसे आप यदि कमर्शियली अपने व्हीकल को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लेजिस्लेट कर रखा है, आदेश दे रखा है कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं। ये नहीं कि जितना मन करे उतना चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप जितने पर आप पावर खरीद रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में
पावर अलग अलग जगहों पे अलग अलग कीमत पे मिलता है। तो जितने पे आप खरीद रहे हैं उससे आप चूंकि आपने वहाँ पे खर्च लगा रखा है तो 10 या 15% मैं भूल रहा हूँ जो एग्जैक्ट नंबर है उतने ही ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कंज्यूमर को क्या रेट पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन ये था। कंज्यूमर के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, हमारी ईवी गाड़ी है, हम चार्ज करने जा रहे हैं, वो कितना प्रति यूनिट हमसे चार्ज करेगा, ये सवाल हो गया। Yes, yes. वो जितने पर खरीद रहा है उससे 10% या 15% जो भी है उतना ही ज़्यादा वो चार्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। उस पे गवर्नमेंट भी तो कुछ लेगी ना, चार्ज, सर्विस चार्ज वगैरह गवर्नमेंट का भी तो लगेगा। वो तो जो भी Obviously, मतलब नियमानुसार जो टैक्स लगता हाँ, है तो जो भी लगता है वो वो तो लगेगा ही। 10% ना होके हो सकता है 30 बन जाए जो भी फिगर। नहीं, आपसे तो उतना ही चार्ज लेगा, बाकी तो उसको जो देना है उसी में से देगा 10%। जी चलिए सर। I think और भी अगर कोई बाइट्स कमेंट्स लेना है तो हम कंटिन्यू करते हैं। सौरभ सर से एक क्लोजिंग बाइट्स ले लें। I think अभी जो भी regulations EV के हैं उसके लिए ICAT सारी टेस्टिंग करने में सक्षम है और आगे चल के ICAT is also participating in creating these standards and making sure that our products will be globally competitive and in some years we would be the leaders. So we are pitching and you can see these events, many of such are about to come, many of such have already been organized. The whole I would say the intent is primarily to make sure that we reach there as has been dreamt by and as the policies have been created in those lines, and we will make sure that at the ground level, at the technology level, we are there. Okay.